شہر کے موسم کی ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ برقرار ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں بارش کا امکان نہیں ہے۔ موجودہ درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کا پارہ 40 ڈگری تک جائے گا، جبکہ لاہور پہلے نمبر پر آلودہ شہر میں قرار پایا گیا ہے۔ فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 174 ریکارڈ کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ شہر میں ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی برقرار ہے۔ موسم کا مزید احوال کومل اسلم سے جان لیں گے۔ کومل، بتائیے گا۔ لاہور کے موسم کی بات کی جائے تو آج موسم مختلف انداز میں جو ہے وہ اپنا آپ دکھا رہا ہے۔ بات کریں اس وقت کے حوالے سے تو ہوائیں بھی چل رہی ہیں، لیکن اس وقت سورج کی تمازن جو ہے وہ تھوڑی زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ ٹیمپریچر کی بات کریں تو AQI بھی اس وقت جو ہے وہ زیادہ ہے۔ ٹیمپریچر اس وقت 39 ریکارڈ کیا گیا ہے، اور اگر ہم AQI کی بات کرتے ہیں تو وہ اس وقت 172 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ چکا ہے۔ ہواؤں کی رفتار بات کرتے ہیں تو ہواؤں کی رفتار اس وقت تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور ماہرین موسمیات نے بتایا کہ آج بارش سے متعلق کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ لہٰذا چونکہ اس وقت گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو لاہوریوں سے احتیاط برتنے کے حوالے سے تاکید کی جا رہی ہے۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ ہلکے رنگ کے سوتی کپڑوں کا زیادہ سے زیادہ انتخاب کریں، چہروں کو ڈھانپ کر گھروں سے باہر نکلیں۔ خاص طور پر معمر افراد اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں، اور اگر گھروں سے نکلنا بے حد ضروری ہے تو اپنے ہمراہ امبریلا لے کر نکلیں، اور کوشش کریں کہ ٹھنڈے مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے۔ جیسے گرمی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو لاہوری تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت صورتحال بھی کچھ اسی طریقے کی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ پسینے تو ہم نہیں کہیں گے، لیکن گرمی ویسے ہی محسوس کی جا رہی ہے جیسے ایک چبھنے والی گرمی ہوتی ہے۔ تو سنا لاہوریوں سے احتیاط کی اپیل کی جاتی ہے کہ خدا را احتیاط کریں، کیونکہ لاہور کی خوبصورتی لاہور کے باسیوں سے ہے، اور باسی جیسے موسم میں تھوڑی سی تبدیلی دیکھتے ہیں۔ جیسے آج ہم ہوائیں صبح کے اوقات میں ہم نے محسوس کی تو ہمیں یہی لگا تھا کہ سارا دن موسم اس طریقے سے بہتر رہے گا۔ بہتر کی پیشگوئی ضرور کی گئی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مڈ میں جو ہے وہ تھوڑی سی گرمی محسوس کی جا سکتی ہے، جو کہ اس وقت ہم محسوس کر رہے ہیں۔ تو لاہور یہ بے احتیاطی برتتے ہیں، اور پھر اس کی سچویشن یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے وہ اس وقت یہی کہا جا رہا ہے کہ احتیاط کریں اور احتیاط کریں۔ امبریلا کا اپنے ہمراہ لے کر نکلیں، اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ ہوادار جگہ کا انتخاب کریں اور چھاؤں والی جگہوں پر بیٹھیں، اور تازہ پانی کا زیادہ سے زیادہ انٹیک کریں۔ اور بات کی جائے بارشوں سے متعلق تو نہ تو آج بارش کا کوئی امکان موجود ہے، نہ ہی رواں ہفتے بارش کا کوئی امکان فی الوقت بتایا جا رہا ہے، اور آج بھی موسم جو ہے وہ تبدیلیاں دکھائے گا۔ سورج اور بادلوں کے درمیان اٹکلیاں جاری رہیں گی۔ ٹیمپریچر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 40 ریکارڈ کیا جائے گا۔ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے تقریباً 36% ہے، اور ہوا کی رفتار کی بات کریں تو اس وقت جو ہے وہ 10 سے 12 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ شام کے اوقات میں یہی ہوائیں جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ لاہور شہر کے موسم کو مزید بہتری کی جانب لے کے جائیں گی، کیونکہ اوبویس سی بات ہے شام کے اوقات میں سورج تو غائب ہوگا اور تمازن بھی اس کی نہیں ہوگی، اور موسم جو ہے وہ بہتر ہی محسوس کیا جائے گا۔ اور اس وقت لاہوری جو ہے وہ احتیاط برت بھی رہے ہیں، جو نہیں برت رہے ان کو اپیل کی جا رہی ہے کہ خدا را احتیاط کریں۔ اور ہوائیں جیسے ہی چلتی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ موسم بہتر ہے، لیکن جیسے بہت شکریہ، ہمارے ساتھ کومل تھی اور موسم کا تفصیلی احوال بتا رہی تھی۔ اگلے مالی سال کے بجٹ میں شہر میں 2 پارکنگ پلازے بنانے کی تجویز فائنل کی گئی ہے۔ محکمہ بلدیات کی جانب سے 2 پارکنگ پلازے بنانے کی تجویز فائنل کر لی گئی ہے۔ فیصلہ سیکریٹری بلدیات میاں شکیل احمد کی زیر صدارت اجلاس میں ہوا ہے۔ مزید تفصیلات کیسے گھوگر سے جان لیں گے، بتائیے گا۔ جی، محکمہ بلدیات حکومت پنجاب نے لاہور شہر میں 2 نئے پارکنگ پلازا بنانے کی اسکیم جو ہے وہ اوکے کر دیا۔ آج یہ فیصلہ سیکریٹری بلدیات میاں شکیل احمد کی زیر صدارت اجلاس میں ہوا۔ ٹیپا جو ہے انہوں نے یہ پرپوزل ارسال کی تھی بجٹ کی، جسے محکمہ بلدیات نے اوکے کر دیا۔ اب PND کو ارسال کی جا رہی ہے تاکہ اگلے مالی سال کے بجٹ میں رکھی جا سکے۔ ٹولنٹن مارکیٹ کے پاس جو خالی جگہ پڑی ہوئی ہے وہاں پر ایک انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ پارکنگ پلازا بنایا جائے گا، جہاں پر گاڑیاں کھڑی کرنے کی گنجائش ہوگی، اور 60
करोड़ रुपया जो है उस पार्किंग प्लाजे पर जो खर्च आएगा, जो पार्किंग प्लाजा बड़ा बनाया जाएगा, अंडरग्राउंड जो पार्किंग प्लाजा बनेगा वहाँ पर ये टीपा बनाएगा। ये स्कीम एक मंजूर किया महकमा बल्दियात ने अगले माली साल के बजट के लिए। दूसरी स्कीम जो है वो नीला गुंबद के पास जो है वो एक पार्किंग प्लाजा बनाया जाएगा जिस पर 2.25 करोड़ रुपये लागत आएगी। वो भी अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा होगा और वो वहाँ पर गाड़ियों की जो सैकड़ों गाड़ियाँ हैं उनकी खड़ी करने की गुंजाइश होगी। और वो जो स्कीम है वो भी महकमा बल्दियात ने ओके कर दिया। ये दोनों स्कीमें जो है टीपा ने पेश की थी और महकमा बल्दियात ने ओके कर दिए हैं। लाहौर शहर में टोरंटो मार्केट के पास और नीला गुंबद 2 जगह टीपा जो है पार्किंग प्लाजा अगले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कैसर खोखर थे, अपडेट कर रहे थे। 80 सरकारी कॉलेजेस में मुस्तकिल प्रिंसिपल्स की तैनाती के लिए उम्मीदवारों के तहफ़्फ़ुज़ात। महकमा हायर एजुकेशन ने फ़ेज़ 2 के उम्मीदवारों से तहफ़्फ़ुज़ात तलब कर लिए। लाहौर समेत सूबे भर के 520 कॉलेजेस मुस्तकिल प्रिंसिपल्स से महरूम थे। फ़ेज़ 1 में HED ने 440 मुस्तकिल प्रिंसिपल्स तैनात किए हैं। फ़ेज़ 2 में 80 असामियों के लिए सैकड़ों उम्मीदवारों ने दरख्वास्त जमा कराई। बेशतर उम्मीदवारों को भर्ती की अहलियत और ऑन सिस्टम पर एतराज़ था। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ इमरान यूनुस हैं। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी, लाहौर समेत सूबे भर में 750 से ज़ायद सरकारी कॉलेजेस हैं और इन कॉलेजेस में तकरीबन 540 ऐसे सरकारी कॉलेजेस थे जिनमें मुश्किल प्रिंसिपल्स तैनात नहीं थे। महकमा हायर एजुकेशन ने मुश्किल प्रिंसिपल्स की तैनाती का अमल शुरू किया तो 440 सरकारी कॉलेजेस में मुश्किल प्रिंसिपल्स तैनात कर दिए गए। बाकी मानदा जो कॉलेजेस थे उनमें मुश्किल प्रिंसिपल्स की तैनाती के लिए दरख्वास्तें तलब की गई और इन 80 असामियों के लिए जिन उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की गई उनका क्राइटेरिया जो है उसके मुताबिक उनको मार्क्स जो हैं वो दिए गए। लेकिन बेशतर ऐसे भी उम्मीदवार थे जिन्होंने इन 80 असामियों के लिए अप्लाई किया लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे इस क्राइटेरिया से रिलेटेड और ऑनलाइन जो सिस्टम था उससे रिलेटेड तहफ़्फ़ुज़ात थे उम्मीदवारों के। महकमा एजुकेशन ने उनके तहफ़्फ़ुज़ात उम्मीदवारों से उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो तलब कर लिए हैं। जो महकमा एजुकेशन की जानिब से क्राइटेरिया रखा गया है उसमें अब ये डिसाइड किया गया है कि हर असामी के लिए जो टॉप 3 उम्मीदवार होंगे उनको तलब किया जाएगा, उनके इंटरव्यूज़ जो हैं वो किए जाएंगे और टॉप 3 में से जो भी उम्मीदवार सूटेबल होगा, बेहतर नंबर लेगा, उसको मुश्किल प्रिंसिपल तैनात किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस साहब का। 38,000 सरकारी स्कूल 4 माह से नॉन सैलरी बजट से महरूम हैं। लाहौर के 1,000 से ज़ायद सरकारी स्कूलों को ताहाल नॉन सैलरी बजट नहीं मिल सका है। 1.5 माह पहले महकमे ख़जाना की जानिब से स्कूलों को नॉन सैलरी बजट जारी किया था। इस पर मज़ीद तफसीलात जुनैद रियाज से हासिल कर लेंगे, बताइएगा। जी, पंजाब भर के 38,000 स्कूल जो है वो नॉन सैलरी बजट से महरूम है। एक साल में 4 किस्तें जारी होती हैं, अभी तक 2 किस्तें जारी हुई हैं और आखिरी किस्त जो है वो 25 जनवरी को जारी हुई थी जो कि 12 करोड़ 90 लाख रुपए थे और इसके बाद जो है अभी तक कोई किस्त जारी नहीं हुई और स्कूलों में जो है वो बिजली के बिल जमा कराने में मुश्किलात पेश आ रही हैं और माली मुश्किलात से 2-4 हैं। ताहम उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर जो COs के एंड के ऊपर पैसे पड़े हुए हैं वो फौरी तौर पर जारी किए जाएँ क्योंकि माली साल भी खत्म होने का और आखिरी 2 किस्तें जो है ज़ाया हो सकती हैं। ताहम फौरी तौर पर बजट जारी किया जाए ताकि स्कूलों के माली मामला को चलाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद। PND बोर्ड का तमाम महकमों को 30 जून तक तमाम बजट खर्च करने का हदफ है। PND बोर्ड का चौथे क्वार्टर का तमाम बजट खर्च करने का हुक्म। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, PND बोर्ड ने तमाम महकमों को नई ताज़ा तरीन टारगेट दिया है कि 30 जून तक जो है चौथा क्वार्टर जो है उस बुक का बजट का जो 100% है वो खर्च किया जाए और जो बजट खर्च नहीं होगा वो बजट लैप्स हो जाएगा और महकमों के खिलाफ फिर कार्रवाई होगी कि महकमों ने बजट खर्च नहीं किया। और इस वाले से तमाम तरक्याती फंड जो खास तौर पर जो रोड सेक्टर है, बिल्डिंग सेक्टर है या दूसरे जो तरक्याती मनसूबे हैं या सीवरेज के हैं, वास्ता के हैं या बल्दियाती इदारों के हैं या दूसरे जो सड़कें बनाने के मनसूबे हैं या पुलिस के जो मनसूबे हैं वो 30 जून तक हर सूरत में बजट खर्च करने का महकमा PND बोर्ड ने तमाम महकमों को टारगेट दिया है और इस हवाले से कहा है कि जो महकमा खर्च नहीं करेगा उस महकमे के खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर आपका। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की रेवेन्यू में इजाफे के लिए कोशिशें। 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर प्राइवेट सेक्टर और कंपनियों को डिजिटल ब्रांडिंग के लिए जगह मुहैया करने का फैसला किया गया है। फैसला डिजिटल ब्रांडिंग के जरिए रेवेन्यू में इजाफे के लिए किया गया है। दाखिली और खारजी रास्तों, पार्किंग, लैंड साइड जोन, पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग में ब्रांडिंग के लिए जगह दी जाएगी। इस पर मजीद तफसीलात हासिल कर लेंगे। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा।
जी बिल्कुल, पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से रेवेन्यू में इजाफे के लिए तगदो है वो जारी है और एक फ़ैसला किया गया है कि मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट्स के ऊपर जो डिजिटल ब्रांडिंग है वो अब की जाएगी, जिनमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद एयरपोर्ट हैं वो शामिल हैं। और इन तीनों एयरपोर्ट के जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते के ऊपर पैसेंजर टर्मिनल के बिल्डिंग के अंदर, जबकि जो पार्किंग समेत दीगर अहम जगह हैं वहाँ के ऊपर डिजिटल ब्रांडिंग के लिए जगह है वो मुहैया की जाएगी। और इसलिए इसके लिए जो निजी कंपनियों से और फर्मों से जो बिड्स हैं, टेंडर्स हैं, जो दरखास्तें हैं वो तलब हैं वो कर ली गई है। तो ज़ाहिर का कहना है कि पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की तरफ से फैसला किया गया है कि जो खाली जगह लोकेशन है जो कि बहुत नायाब लोकेशन है एयरपोर्ट अथॉरिटी की एयरपोर्ट्स के ऊपर, जिनमें रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों मुसाफिर जो हैं वो वहाँ से गुजरते हैं, तो उनको जो है अब डिजिटल ब्रांडिंग की तरफ वो लाया जाएगा। तो इस मरले के अंदर जो एक टेंडर है वो दरखास्तें हैं वो तलब कर ली गई हैं। और ज़राए का ये कहना है कि जो डिजिटल ब्रांडिंग के लिए 1 साल के लिए और 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए मुख्तलिफ माहदे हैं वो किए जाएंगे। तो इस वजह से जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं और ख्वाहिशमंद फर्में हैं वो पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफिस से जो है वो रब्ता कर सकती हैं और वहाँ से डिटेल है वो हासिल कर अपनी दरख्वास्तें हैं वो जमा करवा सकती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद। सईद, PSL सीज़न 10 की लाहौर में रौनकें बहाल होने लगी हैं। प्ले ऑफ एलिमिनेटर के लिए लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर की टीमें आज लाहौर पहुंचेंगी। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स बता रहे हैं हमारे साथ वसीम अहमद हैं। जी वसीम। जी, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 के जो प्ले ऑफ एलिमिनेटर और फाइनल की तैयारियां कदाफी स्टेडियम लाहौर में जारी हैं। पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। अभी से नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को आम अफराद और आम ट्रैफिक के लिए दाखिला इसमें बंद कर दिया गया है। फिरोजपुर रोड की एंट्रेंस जो है वो भी आम अफराद के लिए, आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है, जबकि जो कदाफी स्टेडियम की और नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की एंट्रेंस है लिबर्टी राउंड अबाउट से, उसको भी आम अफराद और आम के लिए बंद कर दी गई है। ये जो टीमें हैं उनके प्रैक्टिस वेन्यू जो है वो LCCA ग्राउंड है, उस पर भी तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। जबकि जो पहला एलिमिनेटर जो है प्ले ऑफ मैच जो है वो कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके लिए भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं। पिचेस की जो तैयारी है वो की जा रही है, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद तकरीबन 13-14 दिन के ब्रेक के बाद दोबारा से जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसके मैचेस का यहाँ पर कदाफी स्टेडियम में आगाज़ होने जा रहा है। अब जो तमाम तर तैयारियां हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मुकम्मल कर ली गई हैं। 2 टीमें जिसमें लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर्स है वो आज पहुंच जाएंगी। आज दोनों टीमें आराम के बाद कल से 20 से अपना ट्रेनिंग सेशन जो है उसका आगाज़ करेगी। कल शाम को दोनों टीमें जो है वो LCCA क्रिकेट ग्राउंड पर प्रैक्टिस करेंगी, जबकि परसों 21 मई को पहला। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम अहमद आपका। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की खित्ते की सबसे बड़ी क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनाने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का जदीद साइंसी मरकज़ भी कायम करने का फैसला सामने आया है। मज़ीद तफ़सीलात राव दिलशाद से हासिल कर लेंगे, बताइएगा। बिल्कुल जी, मंसूबे के लिए बजट, आलात और ज़मीन की फराहमी का फिजिबिलिटी प्लान तैयार। जबकि पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ है, जिसमें अहम फैसले किए गए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी UST में लाहौर में जो है वो क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी के क़याम से जो है वो मुतल्लिक अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। ऑब्जर्वेटरी पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हाउस में कायम की जाएगी, जबकि इंटर्नशिप प्रोग्राम के जरिए हर शोबा के लिए माहौलियाती माहिरीन तैयार किए जाएंगे। ऑब्जर्वेटरी में जदीद खुदकार कम्युनिकेशन एंड और लिंक्ड सिस्टम नस्ब किया जाएगा। GIS लैब, सेक्टोरल इंटरफेस सिस्टम और जदीद डेटा हब का क़याम अमल में लाया जाएगा, जबकि MRI निज़ाम इस्तेमाल होगा। साइंसी तहकीक के साथ साथ जो है वो क्लाइमेट ऑब्जर्वरी के क़याम के लिए ज़मीन का कब्जा मिल गया है। इमारत EICT में तामीर की जाएगी। ऑब्जर्वेटरी से मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात की बरवक्त पेशगोई, तज्जिया और पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी। इजलास में डेटा आर्काइव सिस्टम, कोऑर्डिनेशन यूनिट और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सेल के क़याम की मंजूरी दी गई है। इदारे को जदीद तीन मैनेजमेंट मॉडल के तहत चलाया जाएगा। मरीम औरंगज़ेब की स्मार्ट ऑर्गेनोग्राम की तश्कील की भी हदायत सामने आई है। जिला पंजाब ने माहौलियाती तब्दीली के खतरात से निपटने का जामिया प्लान दिया है। सीनियर सूबाई वज़ीर का कहना है कि ऑब्जर्वेटरी का क़याम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बड़ा कदम है। क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी का मौसम की सूरत हाल पर नजर रखने की जदीद सहूलियात से लेस इमारत होगी, जहाँ माहिरीन पूरे अरसे में खित्ते में होने वाली तब्दीलियों पर निगाह रखते हैं और
جدید آلات کی مدد سے حاصل ہونے والی معلومات کا تجزیہ کر کے خطرات سے بر وقت اطلاع بھی دے سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ راؤل ارشاد۔ اٹاری سٹاپ کی گلیاں گزشتہ 6 ماہ سے خستہ حالی کا شکار ہیں۔ اٹاری سٹاپ کی سڑکوں پر گہرے گڑھے موجود ہیں۔ سڑک کی خستہ حالی کی وجہ سے آمد و رفت میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ کیا صورتحال ہے یہاں پر؟ فریحہ بتا رہی ہیں۔ جی فریحہ۔ جی بالکل، اس وقت میں اٹاری سٹاپ پہ موجود ہوں۔ یہاں کی گلیاں جو ہے گزشتہ کئی ماہ سے جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہاں کے رہائشیوں سے پوچھ لیتے ہیں جی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، کن مشکلات کا سامنا ہے یہاں پہ؟ ٹریفک کی روانگی کا ٹریفک جام ہوتی ادھر، اس کا مسئلہ ہے، تھوڑا بن جائے تو بہتر ہی ہے، حکومت کو چاہیے جلدی بنا دے سو۔ اچھا، یہاں سے جب آپ گزرتے ہیں بچوں کو لے جانے جاتے ہیں تب بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ صبح کو ٹریفک جام ہوتی ہے، بچوں کو اسکول لینے جانا ہوتا ہے تو لیٹ ہو جاتے ہیں، چھوڑنے جانا ہوتا ہے واپسی دینے آتا ہے، اس لیے وہ مہربانی حکومت کو چاہیے جو جلدی بن جائے تو بہتر ہی ہے۔ یہاں کے رہائشی سے ہم نے بات کی، ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ تقریباً 6 ماہ سے جو ہے یہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ روڈ کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو سڑک پر جو ہے وہ جگہ جگہ کھڈے موجود ہے، جس سے نہ صرف پیدل چلنے والوں کو بلکہ موٹر سائیکل سوار، گاڑی سوار سب کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ روڈ کی ٹوٹ پھوٹ کے باعث علاقے میں گرد و غبار بھی جو ہے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ فریحہ تھی، اپڈیٹ کر رہی تھی۔ ادھر قصور روڈ اٹاری دربار کا تباہ حال، مین روڈ برسوں سے حکومتی توجہ کا منتظر ہے۔ علاقہ مکینوں کو کن مسائل کا سامنا ہے، افشان رضوان بتائیں گی۔ جی افشان۔ ہاں جی بالکل، اس وقت ہم اٹاری دربار قصور روڈ کے مین روڈ پہ موجود ہیں۔ یہ دربار سے آگے آبادی میں آتا ہوا روڈ ہے، مین روڈ اس کو کہا جاتا ہے علاقے کا، لیکن اس کی خستہ حالی بتا رہی ہے کہ اس کی طرف انتظامیہ کی جانب سے کبھی توجہ نہیں دی گئی۔ یہ پوری طرح سے کھٹارا ہو چکا ہے، مین روڈ خستہ حالی کا شکار ہے، تباہ ہے، جبکہ یہاں سے گزرتے ہوئے شہریوں کو اپنی جان اور مال دونوں کی فکر کرنی پڑتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس تباہ روڈ سے گزرتے ہماری گاڑیاں جو ہیں کھٹارا ہو گئی ہیں، جبکہ حادثات جو ہیں روز کی بات بن چکے ہیں۔ یہاں پہ کیچڑ کی صورت میں سیوریج کا گندا پانی بھی موجود ہے، جبکہ دھول مٹی اڑنے سے پورا دن شہریوں کو سانس کی بیماریاں مبتلا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بیشتر درخواست دی گئی ہے کہ اس روڈ کی مرمت کروائی جائے، اس کی خستہ حالی دور کی جائے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے اس علاقے کے حوالے سے کوئی نوٹس نہیں دیا جاتا ہے۔ گاڑیاں، رکشے جو بھی یہاں سے گزرتے ہیں تمام کو جو ہے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے آمد و رفت میں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ روڈ سالوں سے اسی حال میں موجود ہے اور انتظامیہ اس کے خلاف ایکشن لینے کے لیے، اس کے خلاف نوٹس لینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ افشار رضوان آپ کا۔ ادھر کوٹلگ PCNG والی پرانی گلیاں پرانی ہی رہ گئی ہیں، جگہ جگہ ملبہ اور کچرے کے ڈھیر لگ گئے ہیں، عرصے دراز سے گلیاں خستہ حال ہیں، شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے، طلحہ اشرف سے جان لیں گے، بتائیے گا طلحہ۔ جی بالکل، کوٹ لکھپت کے علاقے میں موجود ہوں۔ کوٹ لکھپت کی CNG والی جو پرانی گلیاں ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ شہریوں کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ سرے سے ہی یہ گلیاں بنائی نہیں کی، پکی نہیں کی گئی، یا آج بھی یہاں پر خستہ حالی کا شکار ہیں۔ شہریوں سے بھی بات چیت کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے وہ بھی جان لیتے ہیں۔ آپ بتائیے گا۔ تقریباً کافی عرصے سے میں ادھر آ رہا ہوں، یہ گلی ایسی ہے تو بہتر تو یہی ہے، یہ گلی بننی چاہیے، یہ کچرا وغیرہ ختم ہونا چاہیے، یہ گلی کو ریپیئر کرنا چاہیے۔ کافی ایریا میں گلیاں نہیں بن رہی ہیں، ادھر نہیں بنا رہے ہیں۔ یہاں جب بارش آتی ہے تو پانی کافی کھڑا ہو جاتا ہے، بائک نہیں گزر سکتی، بندہ پیدل نہیں گزر سکتا۔ اپیل کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد یہ گلیاں بھی تعمیر کی جائیں تاکہ یہاں پر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ طلحہ اشرف۔ آگے بڑھیں، چبرجی رکشہ مارکیٹ میں نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی غیر فعال ہو چکا ہے اور فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے بند ہے، مکین خاصے پریشان ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات ابوبکر شیخ سے حاصل کر لیں گے، بتائیے گا۔ بالکل جی، چبرجی رکشہ مارکیٹ میں نصب یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے غیر فعال ہو چکا ہے۔ پلانٹ پر لگے تمام جو نل ہیں یہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پلانٹ جہاں پہ کوئی ایک پوائنٹ بھی موجود نہیں ہے۔ علاقہ مکینوں کا یہ الزام ہے کہ یہاں پہ رات میں نشئی آتے ہیں اور یہ نل اتار کے لے جاتے ہیں، لیکن انتظامیہ اس تمام تر معاملے میں سو رہی ہے۔ علاقہ مکینوں نے یہ شکوہ کیا کہ انہیں پانی کے حصول کے لیے دور دراز علاقوں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ متعلقہ انتظامیہ اور منتخب سیاسی قیادت سے ان کا یہ کہنا ہے کہ کئی بار تحریری طور پہ شکایات درج کروا چکے ہیں، لیکن عملی طور پہ کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے۔ علاقہ مکینوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ لاکھوں کروڑوں روپے کی لاگت سے ایسے فلٹریشن پلانٹس کا افتتاح تو کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کوئی دیکھ بھال نہیں کی جاتی، نہ ہی یہاں پہ کوئی عملہ، کوئی سٹاف موجود ہوتا ہے جو کہ اس کی دیکھ بھال کر سکے، اس کی حفاظت کر سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ابوبکر شیخ۔
PTI रहनुमाओं के खिलाफ फरवरी में रैली और रियासत मुखालिफ नारेबाजी का मुकदमा। अदालत में PTI के 2 वकील रहनुमा अबूरी जमानत पर समाअत की गई। इंतजार हुसैन और नाजिया अशरफ उर्फ नाज बलोच की अबूरी जमानत में 26 मई तक की तौसी कर दी गई है। समाअत का तफसीली आवाज़ जानेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन जमाली। PTI के वकील रहनुमा इंतजार हुसैन पंजोता और नाज बलोच की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दोनों मुल्ज़मान की अबूरी ज़मानत में 26 मई तक तौसी कर दी है और आइंदा समाअत पर पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब की है। इंतज़ार हुसैन समझौता और नाज बलोच समेत दीगर के खिलाफ और ऐवान अदल के करीब जो है रैली निकालने और रियासत मुखालफ नारेबाजी करने और पुलिस से मज़ाहमत करने पर फरवरी में थाना इस्लामपुरा के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमे के अंदर सनम जावेद, आलिया हमजा समेत दीगर भी नामजद हैं और आज इनकी अबूरी ज़मानत से मुतल्लक जो है इंतज़ार हुसैन पंजोता और नाज बलोच जो है अदालत में पेश हुए। अदालत ने इनकी अबूरी ज़मानत में तौसी कर दी है और मज़ीद कार्रवाई जो है 26 मई। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली आपका। लाहौर हाई कोर्ट में मुगवी की अदम बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा समेत दीगर पुलिस अफसरान पेश हुए। समाअत का मज़ीद अहवाल जान लेंगे मलिक अशरफ से, बताइएगा। लाहौर हाई कोर्ट में मुगवी की बाजियाबी के मुतल्लिक केस की समाअत हुई है, जिसमें DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर ज़ीशान रज़ा अदालत के रूबरू पेश हुए हैं और अदालत को आगाह किया है कि मुगवी 2 रोज़ कबल अपने घर पहुंच चुका है, जिस पर अदालत ने मुगवी के बाजियाबी होने पे जो दरख्वास्त है वो निपटा दी है। जस्टिस तारक महमूद बाजवा की अदालत में गजाला बीबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें अदालती हुक्म पे जो DIG इन्वेस्टिगेशन है ज़ीशान रज़ा वो पेश हुए। अगरचे इस केस में CCP को तलब किया गया था, लेकिन चूँकि मुगवी बाजियाब हो चुका था तो CCP के बजाय आज DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा पेश हुए और दरख्वास्त गुजार का वकील भी पेश हुआ। दरख्वास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़ ये था कि जो मुगवी जो दरख्वास्त गुजार है इसका बेटा जेल से रिहा होने के बाद उसको CCTV वालों ने अपने हिरासत में रखा, जिसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जिस पर जस्टिस तारक महमूद बाजवा ने DIG इन्वेस्टिगेशन से मुकालमा करते हुए कहा कि आप इस पर क्या कहेंगे। तो DIG इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुगवी को हिरासत में नहीं लिया था और इस वाले से उनके ये रिहा भी उन्होंने नहीं किया। मुगवी का जो है वो घर पहुंच चुका है। तो अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि बताएं कि CCD ने उनको हिरासत में रखा था, इस पे क्या कहेंगे। तो DIG इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि CTD एक अलहदा विंग है जिसका ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन विंग से कोई तल्लुक़ नहीं है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार खातून के वकील और DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा का मौक़िफ़ सुनने के बाद बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मलिक अशरफ थे, अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि फैमिली कोर्ट में बालिग लड़की ने बाप से खर्चे के लिए दावा दायर कर दिया। मेरी तालीम जारी है, मुझे खर्चा दिलवाया जाए, दरख्वास्त गुजार ने कहा। दरख्वास्त गुजार अरमान की जानिब से वकील शहबाज भट्टी पेश हुए। दरख्वास्त गुजार का मज़ीद क्या कहना है, शाहीन अतीक बताएंगे। जी शाहीन अतीक। जी, फैमिली अदालत में आज एक केस जो है वो यहाँ पर पेश हुआ है, जिसमें कानूनी नुक्ता ये उठाया गया है कि बच्चा अगर बालिग भी हो जाता है तो वो अपने बाप से खर्चा ले सकता है। मेरे पास यहाँ पर मोहम्मद आशिक मौजूद है जो बाप की तरफ से जो है वो पेश हुए हैं। इनका कहना है कि खर्चा नहीं ले सकता। मज़ीद क्या मौक़िफ़ है वो हम इनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा कि आपने क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया है। जब बच्चा बालिग हो गया है तो कानूनी तौर पर वो ना बाप से खर्चे का हकदार नहीं है, नहीं ले सकता। तो आपके जो मुखालिफ है उन्होंने कहा ले सकता है। वो तो जब अदालत फैसला करेगी, वो साबित करेंगे को तो फिर ही लेगा, अभी फ़िलहाल तो नहीं ले सकता। जी, आपने मोहम्मद आशिक एडवोकेट है, उनका मौक़िफ़ था। मेरे पास शहबाज भट्टी है जिन्होंने जजमेंट भी पेश की है। क्या मौक़िफ़ है वो जानते हैं। आप ये बताइएगा कि आपने किस बुनियाद के ऊपर पैसे मांगे हैं बाप से। जी, इसमें इस तरह है कि हमारे पास ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें ये वाज़ह डिक्लेयर किया गया है कि जब एक बच्चा तालीम जारी रखी हो जिससे उसे बाइज़्ज़त रोज़गार मिलने की तवक्को हो और अगर या वो मजूर हो तो वो बालिग होने के बाद भी अपना ख़र्चा अपने बाप से मांग सकता है और अदालत हजूर जो है फैमिली कोर्ट जो है वो उसको उसके बाप को पाबंद कर सकती है कि वो उसका ख़र्चा जो है वो उसको अदा करे। और ख़र्चे में सिर्फ ख़र्चा शामिल नहीं है, इसमें तालीम, सफ़र, जिस्मानी व ज़हनी नशोनुमा ये सारे ख़र्चे शामिल हैं। इसमें 2000 जजमेंट है ऑनरेबल हाई कोर्ट की PLD 2025 लाहौर 152 पेज। इसके तहत ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि बालग हो के भी वो अपने बाप से खर्चा ले सकता है।
जी आपने शहबाज भट्टी एडवोकेट है, उनका मौका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाहीन अदीक थे, अपडेट कर रहे थे।